ओके मैम। स्टार्ट होगी मैम। Good afternoon, everyone. I hope I'm audible to everybody and my screen is also visible. So we have done 5 chapters so far and I have shared all the study material with everybody in the WhatsApp group. If you have any of the problem in any of the concepts that I have taught in the past 5 classes, please let me know. Please post your queries in the chat box. I'll answer them. Else I'll start with a new chapter now. Chapter number 6. Good afternoon. Okay, fine. Then I'm starting with the next chapter. एक second, एक message और है. सपना, मैं आपसे ना अभी यहाँ पे लिंक शेयर, आप मुझे एक पर्सनल पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए. आई विल शेयर द ग्रुप लिंक एंड देन यू कैन ऐड योरसेल्फ. मैं आपको इनवाइट सेंड कर दूंगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइएगा. आई विल शेयर ऑल द PPTs of past 5 chapters and the 6th chapter that I'm going to do today. Okay. So जिसको भी ग्रुप में ऐड होना है आप लोग प्लीज मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सेंड यू एन इनवाइट ओवर देयर. So let's start with chapter number 6, that is business environment. Business environment is very important chapter from your exam point of view. ये चैप्टर आप अपने मार्केटिंग में भी पढ़ेंगे. फाइनल ईयर में you will have principles of marketing with you. So in that also you will study about business environment. But under that subject, you will study business environment from the perspective of marketing. But here, I will under this subject, we are going to study it from the perspective of the business and management. So we'll study about business environment, features of business environment, significance, types of business environment, internal environment and external environment, and then macro environment, what are its components, what are the environmental challenges, and what are the characteristics of the business friendly environment, and what are the effects of governmental policy changes on the business and on the environment as a whole. So moving on to the first part, that is your business environment. Business environment का क्या मतलब होता है? Have you ever heard of this term? What do you mean by business environment? Can you please give me an answer in the chat box कि business environment क्या होता है? Okay, meanwhile you're writing your answers here. I'm sharing the PPT. Just a second. Okay, so business environment को अगर हम बात करते हैं तो वो सारी conditions, वो सारे factors जो कि business के इर्द गिर्द घूमते हैं और बिजनेस की फंक्शनिंग में, उसके ऑपरेशंस में उसको अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो अब एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एनवायरनमेंट में इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं. वो हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में. लेकिन अगर हम अभी बात करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे बनता है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एंटिटीज यानी कि इंडस्ट्रीज, आपका पॉलिटिकल कंडीशंस, इन्वेस्टर, सप्लायर, कस्टमर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, आपका स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ये सब कुछ मिलाकर जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है,
या नहीं ग्रो कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, ग्रोथ हो रही है और इवन सर्वाइवल के लिए हम उसको बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की. Okay, so it is nothing but the sum total of all the institutions, individuals, and other forces that are outside the control of the business enterprise. Business. ओके, तो अब यहाँ पे मतलब बिजनेस की जो ग्रोथ है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी सस्टेनेबिलिटी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हुए? ये फैक्टर्स हुए सप्लायर्स, कंपेटिटर्स, कंज्यूमर्स एंड कस्टमर. क्या आप मुझे डिफरेंस बता सकते हो कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर? ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्टिंग. हेमलता, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. हम कंज्यूमर और कस्टमर की बात कर रहे थे, तो कंज्यूमर और कस्टमर में फर्क ये है, कंज्यूमर होता है जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है और कस्टमर होता है जो एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट को खरीद रहा है. तो क्या डिफरेंस हुआ? सपोज आई वेंट टू द मार्केट टू बाय स्केच पेन्स फॉर माय सन. तो यहाँ पे कस्टमर कौन है? मैं. लेकिन स्केच पेन्स को यूज कौन कर रहा है? मेरा बेटा. तो मेरा बेटा हो गया कंज्यूमर और मैं हो गई कस्टमर. ठीक है. इकोनॉमिक कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस, इन्वेस्टर्स, टेक्नोलॉजीज, ट्रेंड्स, मल्टीपल अदर इंस्टीट्यूशंस that are working externally of a business, they constitute your business environment. Okay, so the next part is कि business environment की जब हम बात कर रहे हैं तो इस definition से हमें क्या इसकी characteristics पता चले हैं कि कौन से क्या इसके features हैं. सबसे पहले, क्योंकि जहां इतने सारे फैक्टर्स होते हैं तो डेफिनेटली वो जगह तो डायनामिक होगी, एवर चेंजिंग होगी, फ्लेक्सिबल होगी. मैं वहां पे रिजिडिटी ला ही नहीं सकती कि हमेशा मौसम एक जैसा रहेगा, नहीं रहेगा ना. एंड इट इज मोर कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स क्यों? बिकॉज सो मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एंड अफेक्टिंग द बिजनेस ऑपरेशंस. दैट इज व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स. इट इज अनसर्टेन बिकॉज यू नेवर नो व्हेन द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. फॉर एग्जाम्पल, DU ने 1 वीक पहले नोटिस निकाला कि 17 फेब से हम लोग ऑफलाइन कॉलेजेस को रेज्यूम कर रहे हैं. सो all the students that were located outside Delhi, they were told to come 2-3 days before the reopening of the colleges and isolate them for the so that they can isolate them before joining the college. तो ये क्या था? ये अनसर्टेन था. None of us, even we as teachers, were not prepared कि the colleges are going to start. So now हमें accordingly ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन पेपर होंगे या सब चीजें बड़ी अनसर्टेन है. एंड देयर इज दिस म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट. जब हम बिजनेस और एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है और दोनों की म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस की वजह से ही दोनों एंटिटीज एग्जिस्ट कर पा रही हैं, नहीं तो दोनों एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी. Far reaching impact is there, relativity is there. Then comes your importance of business environment. Can anyone of you tell me the importance of business environment? Saurabh, you're correct. Consumer uses a product. Yes, anyone else? Can you tell me? देखो बिजनेस, मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देती हूँ, फिर आपको ये दिख जाएगी स्क्रीन. ओके, आई थिंक इट्स विजिबल नाउ. ओके, टेल मी बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है कि हमको इस पर पूरा एक चैप्टर ही पढ़ना पड़ रहा है. देखो, इट इज हेल्पफुल इन असेंबलिंग एंड टैपिंग रिसोर्सेज. नो बिजनेस कैन वर्क इन आइसोलेशन. तो इसके लिए मुझे रिसोर्सेज कहाँ से चाहिए? एनवायरनमेंट से. एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज कौन दे रहा है मुझे? सप्लायर्स दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स मुझे पैसा दे रहे हैं, तो मुझे उन असेंबल कैसे कर रही हूँ मैं? लॉजिस्टिक्स की मदद से. सो it is helpful in assembling and tapping resources.
It helps to adapt and adjust with the rapid change. जैसे जैसे changes हो रहे हैं तो environment वो support भी तो मुझे दे रहा है ना. जैसे पैंडेमिक आया, हम लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग में रेज्यूम किया, तो उसके हाँ नहीं, नदी में अच्छी नहीं करी. ओहो, ओके फाइन. हाँ, सो मैं, एम आई ऑडिबल? Okay, I think I'm audible now. Fine. So I was saying कि help to adjust and adapt with the rapid change. कि ऑनलाइन पैंडेमिक ने हमें कहा कि you have to stay at home. But घर पर रहकर हमने उस change को कैसे cope up किया? We didn't stop learning and we resumed teaching through online procedure. Okay, it enables the firm to identify the opportunities and getting the first better advantage, first mover advantage जिसको हम बोलते हैं. तो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, अपने कस्टमर्स पर फोकस करना, अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करना, अपनी पब्लिक इमेज को इंप्रूव करना. ठीक है, दिस इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग. कोई भी एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल कैसे होता है? एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल पैसे से नहीं होता है, रिसोर्सेज से नहीं होता है, लैंड लेपर कैपिटल से नहीं होता है. एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होता है जब उसमें एक ये एबिलिटी है कि वो मार्केट कि आज से 10 साल आने वाले हैं, करंट नीड्स को तो वो फुलफिल करे ही, बट आने वाली फ्यूचर नीड्स के लिए भी वो अपने आप को प्रिपेयर रखे, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ. और ना सिर्फ वो चेंजेस को प्रिडिक्ट करे बल्कि वो चेंजेस लाए. ही बिकम्स द चेंज एजेंट. गॉट इट? ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट. This is your types of business environment. Look at this diagram. It's very, very important diagram. आपसे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो डू मेक दिस डायग्राम ऑल्सो. ठीक है. अब बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है. एक तो बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट, जहाँ पे उसके एम्प्लॉयज हैं, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रेड यूनियंस की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, एम्प्लॉयज की, मैनेजर्स की, एम्प्लॉयज की फैमिलीज की. और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम बात कर रहे हैं कंपेटिटर्स, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, सप्लायर्स. ये सब एक्सटर्नल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट, सोसाइटी एज अ होल. तो इसीलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को वी हैव फर्दर बाइफरकेटेड अंडर टू हेड्स, दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट and macro environment. Moving on to the next part, that is micro environment. I hope my slides are all visible to you. Okay, now internal environment, जैसे मैंने आपको बोला, internal environment are comparatively have controllable factors. मतलब यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है जो कि कंट्रोलेबल फैक्टर्स है. आपकी वैल्यूज, आपके प्रोसीजर्स, स्ट्रैटेजीज, रूल्स, रेगुलेशंस, विजन, मिशन, कॉर्पोरेट कल्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, ट्रेड यूनियंस, ये सब कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं. ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक कर दी, स्टिल यू कैन वर्क इट आउट. फाइनेंस कम पड़ रहा है, स्टिल यू कैन वर्क इट आउट. ये आपके अंदर का यू कैन स्टिल वर्क इट आउट. ठीक है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं. ओके, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये सब आपका इंटरनल एनवायरनमेंट में आप फिर भी टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उसमें आप कोप अप कर सकते हैं. बट जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स दैट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज as well as threats to the business. They are uncontrollable factors. They are not in the hands of any of the organization and the firm is compelled to adapt to external environment. क्योंकि अगर firm adapt नहीं करेगी तो फिर क्या होगा?
फर्म को इंडस्ट्री से बाहर होना पड़ेगा. It has to dissolve itself. So it has to strive against the environmental threats. So when we talk about external environment, we have two types of environment, micro environment and macro environment. Wait a minute, let me read your answers. Some of you have posted the answers. Yes, correct, Aditya. Fine. So moving on to next, we were talking about micro environment and macro environment. Micro environment जो होते हैं ये आपकी it includes immediate periphery में बिजनेस है आपका, तो बिजनेस के इर्द गिर्द एकदम इमीडिएट पेरीफेरी की अगर मैं बात करती हूँ तो कौन आता है जिसका फर्म पे कंटिन्यूअस और डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है? वो होते हैं उसके कस्टमर्स, उसकी कंपेटिटर्स, उसकी मार्केट, उसकी इंडस्ट्रीज, उसके इंटरमीडियरीज, सप्लायर्स. ये बिजनेस के स्पेसिफिक होते हैं, है ना. आपके बिजनेस के कंपेटिटर्स वो आप ही के कंपेटिटर्स हैं, वो आप ही की इंडस्ट्री है, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके इन्वेस्टर्स. तो आपकी इमीडिएट पेरीफेरी में जो लोग आते हैं बट दे आर अनकंट्रोलेबल, दे आर एक्सटर्नल टू द कंपनी, those people, those parties are known as external parties. Those parties are known as the parties that belong to micro environment. But when we are talking about macro environment में we talk in general कि वो factors, वो parties जो environment के हिस्सा होती हैं and that influences the functioning and the performance of every business organization in general. अब in general कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? In general आपकी सोसाइटी हो सकती है, in general आपकी गवर्नमेंट हो सकती है, पॉलिटिकल चेंजेस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, या ग्लोबली ही एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है. सुना होगा ना आपने माइक्रोचिप की शॉर्टेज हो रही है, अब आने वाले टाइम में माइक्रोचिप्स की शॉर्टेज होगी. Have you ever heard of this? जो आपके सिम कार्ड्स होते हैं या आपकी फोन में जो चिप्स लगी हुई होती हैं, आने वाले टाइम में इसकी शॉर्टेज होने वाली है. एंड दे आर गोइंग टू बी रियली रियली एक्सपेंसिव. तो ये क्या है आपका? ये आपका ग्लोबल चेंज है, ये आपका ग्लोबल थ्रेट है. ओके तो ये दिस इज इन जनरल टू एवरीबॉडी. दिस इज नोन एज योर मैक्रो एनवायरनमेंट. So now talking about internal environment in detail, we studied about two types of environment, internal environment and external environment. So we were saying कि internal environment में कौन आता है? Internal environment में आपके आती हैं, इसमें organizational importance, organizational operations, आपके risks क्या हैं, आपकी innovation क्या है, financial system, value system, कंपनी का vision, mission और ऑब्जेक्टिव्स. इसको 3 लैडर्स बोला जाता है. आप मुझे बता सकते हैं कि विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है? कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स? देखो विजन इज अ ब्रॉडर टर्म, ये एक लॉन्ग टर्म आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या आपका विजन क्या है. आप 10 साल बाद, 15 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? स्टिल अ टीचर or still studying something, or matlab maybe 10 years down the line I see myself as an entrepreneur, or maybe I'm doing something fertile in my life, or maybe I'm contributing to the society in one or the other way. तो ये मेरा विजन है, ठीक है. मेरा मिशन क्या है? मिशन विजन से छोटा होता है. मिशन मेरा ये है कि आई हैव टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ चीपर रेट. और मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि आई हैव टू प्रोड्यूस 100 kgs of wheat in the month of March. Have you got the difference between these three terms? Have you got the difference between these 3 terms? Okay, so vision, mission और objectives ये आपका internal environment है. Why? उसके बाद we talk about विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. अब विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है.
जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, HUF है, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, NGOs, इन सब का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, दे आर कंपैरेटिवली डिफरेंट, ठीक है। एंड कॉर्पोरेट कल्चर इज डिफरेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं, आपकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हैं। मैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात नहीं कर रही हूँ, पर करंटली आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है, दैट इज द पार्ट ऑफ योर इंटरनल एनवायरमेंट। ओके, next going on to the next slide, we have external environment, talking about micro environment. As I told you कि micro environment is the one which talks about the immediate periphery में कौन आता है, तो immediate periphery में आते हैं आपके customers के साथ आप यहाँ पे और लिख लीजिए consumers, ओके। कंज्यूमर्स, सप्लायर्स जो आपको रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजी या कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं, आपके कंपेटिटर्स, आप जिस इंडस्ट्री में सरवाइव कर रहे हो। सपोज आई एम इन टीचिंग इंडस्ट्री, तो मेरे टीचिंग इंडस्ट्री में मेरे कंपेटिटर्स कौन होंगे, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड में भी मेरा स्पेशलाइजेशन एरिया कौन सा है, सपोज मार्केटिंग, तो जो मार्केटिंग में है, दोज पीपल आर माई कंपेटिटर्स, ओके। देन पब्लिक and then your market intermediaries. की market intermediaries are basically the linking pin between the seller and the buyer. तो वो intermediaries भी depend करता है कि आपका selling channel कौन सा है, B2B है, B2C है, D2C है, या कौन सी intermediaries हैं आपकी। Talking about the macro environment, अब macro environment में मैंने आपको बताया था कि जो हर बिजनेस में आता है, मतलब हम एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल बिजनेसेस की बात कर रहे हैं कि इन जनरल बिजनेसेस को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है आपका, यू आर टॉकिंग अबाउट द जीडीपी ऑफ द कंपनी। नाउ जीडीपी की जब मैं बात करती हूँ, तो व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? सबने पढ़ा होगा क्लास 12th में, क्या होता है जीडीपी, जल्दी बताइए मुझे। अगर आपने आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा। GDP is gross domestic product, GNP is gross national product, फाइन। तो हम इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो हाउ मच यू एज अ फर्म कंट्रीब्यूटिंग टू द एनवायरनमेंट इकोनॉमिकली, हाउ मच योर फर्म इज कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिकली टुवर्ड्स द डेवलपिंग इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री। सोशल एनवायरनमेंट में हम इन जनरल बात करते हैं CSR की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कंसेप्ट भी आप फाइनल ईयर में अपना ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ेंगे। CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एज अ फर्म you are taking your resources from the society, so to what extent are you giving it back to the society? आप society को कितना वापस कर रहे हो, in the form of obligations, in the form of, it may be in cash, it may be in kind, आप किस तरह सोसाइटी को वापस कर रहे हो। अब आप कहोगे कि भाई हम चैरिटी करने थोड़ी ना आए हैं, तो हम क्यों ही वापस करें। अगर हम सोसाइटी से कुछ ले रहे हैं तो हम एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, हम प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, हम सर्विसेज भी दे रहे हैं, विच यू आर वेरी राइट, यू आर नॉट रॉन्ग इन सेइंग दैट। लेकिन जब हम CSR की बात करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि सपोज मैं SOL में पढ़ाती हूँ, ठीक है, SOL की बाहर की विसिनिटी जो है, आपने देखा होगा थोड़ा सा आजकल उधर कंजेशन ज्यादा हो रखा है बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशंस या स्टडी मटेरियल को लेकर, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ दैट एरिया, टू मेंटेन ग्रीनरी, टू मेंटेन क्लेनलीनेस, टू मेंटेन द रोड्स एक्सेट्रा। ऑब्वियसली रोड कौन मेंटेन करेगा, गवर्नमेंट मेंटेन करेगी, लेकिन एज एन एंटिटी आई कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट टू फॉर द स्वच्छता थिंग, या फिर ग्रीनरी के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, वहां पे मैं अपने 2 गार्ड्स रख सकती हूँ, दोज हु कैन मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ दैट एरिया। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई हम इंडियंस तो इन चीजों में बिलीव करते नहीं है क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, तो गवर्नमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल द फर्म्स टू कंट्रीब्यूट 2% of their average profits towards of the past 3 years towards CSR. Okay.
Okay. Moving on to next is your political environment, because we are living in a society where government play a crucial role. So every now and then with the changes in the government policies, every now and then with the changes in and the amendments in the acts, and we have to comply with that, with the legalities. So उसके लिए वो भी हमारा external environment में आता है, technological environment. years बैक हमें पेटीएम का, गूगल पे, जी पे, भीम पे, यूपीआई, इनका मतलब भी नहीं पता था. नहीं पता था ना. पता भी होगा तो कुछ एक आधे लोगों को पता होगा, जो बहुत कम लोग होंगे जो डिजिटल मोड ऑफ मनी यूज करते होंगे. बट ड्यू टू पेंडेमिक most of us have switched to this digital electronic form of money. I mean, e-payment method हमने यूज करने शुरू कर दिए हैं. ये क्या है? ये टेक्नोलॉजिकल चेंज ही है. जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि वी हैव टू अबाइड बाय दैट, वी हैव टू कंप्लाई टू दैट. नेचुरल एनवायरनमेंट इज देयर एंड देन देयर इज दिस ग्लोबल एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, है ना. जैसे एक बहुत ही मतलब आप आई स्टिल रिमेम्बर अभी पीछे ना GOT, गेम ऑफ थ्रोन्स, आई थिंक यही फुल फॉर्म है इस गेम की ना. तो इसका बड़ा ट्रेंड चला था देखने का कि GOT नहीं देखा तो क्या देखा, ऐसा कुछ था. आप लोगों ने भी देखा है? करेक्ट सौरभ, आपने GDP ठीक लिखा है. स्क्विड गेम, गेम ऑफ थ्रोन्स, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ माय कलीग, शी सेड कि मैं मंडे को सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे GOT का एपिसोड देखना होता है. एंड आई वाज लाइक, GOT क्या होता है? मतलब बिकॉज GOT इज नाउ कंसिडर्ड एज अ स्टेटस सिंबल कि GOT नहीं देखते तुम, शार्क टैंक नहीं देखते जैसे आजकल बोला जाता है. तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ चीजें हमारे यहाँ पे ग्लोबली इम्पोज भी करी जाती हैं. 1991 में जब हमने NEP इंट्रोड्यूस किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर P चिदम्बरम एंड मोंटेक सिंह आलूवालिया ने 1991 में NEP इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, NIP. दैट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ then late प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव जी. तो उनके अंडर हमने ये NEP स्टडी, मतलब उस टाइम ये इंट्रोड्यूस हुई थी. एंड सिंस देन इट हैज ओपन्ड द डोर फॉर इंडिया ग्लोबली. इन्वेस्टर्स भी बहुत आए और इंडिया के लोग भी बाहर कहाँ गए, जिससे हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई. देयर वाज अ बून इन आवर इकोनॉमी. सो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने से, global changes आने से we have been benefited a lot and we have to abide by that. I hope I am clear. Okay, so going on to the next slide, that is economic environment की अगर हम बात करते हैं तो we talk about economic system, economic conditions, economic policy. जैसे मैंने आपको NEP बताया, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई थी तो सिर्फ 4 सेक्टर्स को छोड़कर बाकी सब सेक्टर्स में LPG आ गया था. LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. अब वो 4 सेक्टर्स कौन से थे? न्यूक्लियर, डिफेंस, रेलवेज, और एक चीज मुझे याद नहीं आ रही, कुछ केमिकल सॉर्ट ऑफ समथिंग से रिलेटेड था. बाकी सब इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर दिया था. मतलब प्राइवेट फर्म्स के लिए गेट दे हैव ओपन्ड. ओके, तो उस केस में हमारी इकोनॉमी को एकदम से बहुत उछाल मिला था. हमारी पॉलिसीज अकॉर्डिंगली चेंज हो गई थी. हमारे लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गेट ओपन हो गए थे, FDI के गेट ओपन हो गए थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी. अगर आप स्पेशली कभी टाइम लगे तो 1991 की पॉलिसीज को गूगल करके पढ़िएगा. मतलब टिल डेट भी वो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज से 30 साल पहले, 30 साल पहले जब ये पॉलिसी आई तो उनका क्या विजन रहा होगा, जो उन्होंने ये पॉलिसीज को फ्रेम किया कि टिल डेट इट इज प्लेइंग अ रेलिवेंट रोल. जस्ट अ सेकेंड, आई एम हैविंग वाटर. अरे देखो कैसी है. Okay, moving on to next. We have social cultural environment. India is rich in culture. It has vast cultural heritage. यहाँ पे culture और traditions को बहुत
महत्ता दी जाती है और देनी भी चाहिए। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ तक कि हम कोई एडवर्टाइजमेंट भी बनाते हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? डेमोग्राफिक फैक्टर्स यानी कि हमारे कंज्यूमर्स का क्या प्रोपोर्शन है, मेल, फीमेल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, देन फैमिलीज, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। अगर आप ये सब देखते हैं तो इंडिया में स्टिल, टच वुड, वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर लिविंग विद आवर पेरेंट्स। ठीक है, even after marriage, even after having babies, we are still living with our parents, which is not there in other countries. So for that reason I think we are blessed. Religious factors हैं, ethical factors हैं, values हैं, labor mobility बहुत comparatively easy है because labor are very cheap, and this is why labor is ready to move into other places in search of jobs and opportunities. Culture and traditions. If you go to Thar desert side area, I mean गुजरात, राजस्थान, जोधपुर, जैसलमेर, यहाँ सब जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग का ऑल टुगेदर डिफरेंट सीन है। क्यों? बिकॉज वहां के लोकलाइट्स को एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, दे यूज देयर ओन कल्चर एंड स्टोरीज टू, सो दैट पीपल कैन रिलेट टू द प्रोडक्ट। छोटे छोटे पपेट स्टोरीज के थ्रू, फोक टेल्स के थ्रू वहां पे लोगों में वो वैल्यूज हैं अभी भी। अर्बन सिटीज की बात नहीं कर रही, इफ यू गो टू villages also, you yourself will see ki how people are different from that of urban area. The other day I got a chance to visit to a village, and there we lived for 2 days in a farm with a farmer's family, and trust me, the hospitality of that family was far better than in any 5-star or 7-star hotel. मतलब तो दिस इज आवर कल्चर ओनली ना, तो यहाँ पे हम वैल्यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में वी टॉक अबाउट टैक्स। कल मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया था। जीएसटी क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कि हमने सब तरह के सेल्स टैक्स, ये टैक्स, वैट और ये सब हटा के हमने जीएसटी लगा दिया। जीएसटी से ऑल टुगेदर बिजनेस का काम करने का तरीका ही चेंज हो गया। टैक्स है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आप जब भी देखिएगा कि जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो पेट्रोल डीजल का प्राइस कम हो जाता है ना? फॉरेन ट्रेड रेगुलेशंस आर देयर, एम्प्लॉयमेंट लॉज आर देयर, फाइन। देन देयर इज दिस लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी क्रूशल फॉर एनी कंट्री। आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें आप लीगल एनवायरनमेंट को ही पढ़ेंगे। उसमें हम बात करते हैं कि किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है दैट दे हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द एक्ट्स। बहुत सारे एक्ट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। अब कंपनीज एक्ट 1956 नहीं है, अब कंपनीज एक्ट 2013 है। ट्रेड यूनियन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, कंज्यूमर अफेयर्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जागो ग्राहक जागो, कंपटीशन एक्ट 2002। मेरे पास इसकी पूरी बुकलेट है, मतलब बहुत मोटी बुक है पूरी कंपटीशन एक्ट 2002 की। देन फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, लेबर लॉज। तो इन सब के बारे में दिस इज आवर लीगल एनवायरनमेंट। और जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे तो आप उसमें और भी डिफरेंट एक्ट्स पढ़ेंगे। सेबी, गाइडलाइंस बाय सेबी, एलओडीआर, गाइडलाइंस बाय फिक्की, कुमार मंगलम कमेटी, उदय कोटक कमेटी। तो ये सब क्या है? ये हमारा लीगल एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग विद द ब्लिंक ऑफ एन आई, है ना? तो जब इतनी ड्रास्टिकली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो रही है, तो हाउ यू आर गोइंग टू compete विद द बडिंग स्टार्टअप्स, विद द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स? क्योंकि आज की डेट में किसी को जॉब नहीं करनी, सबको एंटरप्रेन्योर बनना है ना? अब क्योंकि इतने एंटरप्रेन्योर हैं एंड इजी फाइनेंसिंग फैसिलिटीज हैं, तो किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत टफ है टू फाइट विद द यंग एंड फ्रेश माइंड्स, टू ब्रेक द सील। ओके, सो कैसे आप उसको टेक्निकल स्किल्स को, एक्सपर्टीज को, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना। जैसे सपोज आई एम शेयरिंग माय एग्जांपल विद यू। हम लोग ने जब ये पेंडेमिक में क्लासेस को रेज्यूम करने का सोचा तो इट वाज वेरी टफ फॉर अस। हम लोग ने सोचा कि 0 ईयर डिक्लेयर कर देते हैं,
क्योंकि कैसे पढ़ाया जाएगा बच्चों को? बच्चे तो इंडिया के कोने कोने से आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से ऑनलाइन टीचिंग मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा? बट 0 ईयर डिक्लेयर करें कब तक? बिकॉज वी डेंट नो द लाइफ ऑफ पेंडेमिक, सो वी स्विच टू ऑनलाइन लर्निंग। अब हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करी तो भाई वो कैसे कर, कभी कभार हमने गूगल पे मीट किया था, बट वी वर नॉट दैट एक्वेंटेड इनफ, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास वो सही थे दैट वी कैन कंडक्ट द क्लासेस ऑनलाइन। फॉर दिस आवर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स दे प्रोवाइडेड अस विद अ ट्रेनिंग, हमें ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से क्लासेस के लिंक क्रिएट करने हैं, अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करना है। अब तो क्योंकि 2 साल में हम लोग इतने यूज टू हो गए हैं कि नाउ वी हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट आईसीटी। अब वो ये सब लिंक क्रिएट करना, मुझे सिर्फ आपको मुझे क्या करना है, MS टीम्स के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ लॉग इन करना है, मेरा टाइम टेबल ऑलरेडी इंसर्टेड है और अपनी क्लासेस लेनी है मुझे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, मुझे तो क्लास लेनी भी नहीं आती थी, तो हमें हर फैकल्टी को हफ्ते 10 दिन की FDP दी गई, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया गया, सो दैट वी कैन टेक क्लासेस। इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अडेप्ट करके उस बैरियर को तोड़कर बिजनेस को रन करना, चेंजेस को एक्सेप्ट करना और अपनी competitive पोजीशन मार्केट में बनाना। Okay, now today only one of my colleague, we were having a webinar sort of something, तो मेरे colleague ने ये बात बोली कि I think we should continue with the online mode, क्योंकि ऑनलाइन मोड से जैसे वेबिनार होता है, वेबिनार समझते हैं ना, जो आप ऑनलाइन सेमिनार करा रहे हैं, तो वेबिनार में हम जो केरला में भी बंदा बैठा हुआ है हम उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं उसको कहूँ पर्सनली आप मेरे कॉलेज में आके लेक्चर दो, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, या मुझे भी वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, टू एंड फ्रो का खर्चा एंड एक्सेट्रा एवरीथिंग। गॉट इट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर नेचुरल एनवायरनमेंट। जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो सी, हमें सब कुछ कौन दे रहा है? हमें सब कुछ नेचर दे रहा है। नेचर में रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज भी हैं, नॉन रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज भी हैं, मतलब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल जिनको बोलते हैं। सो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वी शुड यूज आवर रिसोर्सेज सो इफेक्टिवली, सो जुडिशियसली, सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन इज एबल टू यूज देम। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगेन इसको आप डिटेल में पढ़ोगे फाइनल ईयर में अंडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओनली, उसमें CSR करके एक टॉपिक है जहां पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने अपने स्कूल में क्लास 7th 8th 9th में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कि रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करना जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हों। करेक्ट? लेकिन अब इसके डेफिनेशन में 2 टर्म्स और आ गई हैं, इकोनॉमी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कि हमें अपने रिसोर्सेज को डेफिनेटली सस्टेनेबली यूज करना है, बट contributing to the economy as well. Okay. Next, moving on to the next part is your global and international environment. As I have told you, कि many companies, they have big plans. Many of the companies, they are investing in India. Many of the Indian companies are investing outside India. Okay, FDI open है। Walmart का केस किसी ने पढ़ा हो तो Walmart has tried its level best to come to India and set up their ventures here. But once the gate for just a minute class, hello, हाँ वो SOL वाली चल रही है। Okay, so we were talking about मैं क्या बात कर रही थी? I forgot. I have to see the slide. हाँ, वॉलमार्ट की बात मैं कर रही थी। तो वॉलमार्ट हैज ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट टू कम टू इंडिया एंड सेट अप देयर वेंचर, लेकिन वंस द गेट फॉर वॉलमार्ट इज ओपन, अगेन इट्स अप टू, सबका अपना परसेप्शन है। कुछ लोग कहते हैं there are 2 houses, one house is for the motion and one house is against the motion. किसी को लगता है कि वॉलमार्ट के आने से हमारे किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा,
हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, पर कुछ लोगों का कहना है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रादर क्रिएट होंगी. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिकल डिबेट ऑफ दैट, बट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंट में अगेन यहाँ पे NEP 1991 को रेफर करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट यू पीपल टू, मैं आई एम राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स. NEP 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. तो ये पोस्ट नहीं हुई है यार. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में हम बात करते हैं. तो एक सेकेंड, connection is lost. Am I audible? Am I audible? Okay, so I was talking about this NEP only. प्लीज स्टडी इन डिटेल. थोड़ा सा एक बार ना गूगल करके देखिएगा कि NEP का क्या मतलब है. देन वी हैव दिस मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट. अब जो भी बिजनेस में चेंजेस हो रहे हैं उसको रिस्पॉन्स करने की, उसको समझने की, उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस इंप्लीमेंट करने की ड्यूटी किसकी है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की. टॉप लेवल मैनेजमेंट ये काम कैसे कर सकती है? Unless and until they have a better understanding of what is going in the environment by installing MIS, Management Information System, forecasting, recruiting experts, innovation. हम क्यों किसी की innovation को adapt करें? हम क्यों अपने आप से अपनी innovation create नहीं कर सकते? Path of least resistance, acquisitions, mergers and joint ventures and systematic adaptations. This is a very popular method, acquisition, merger and joint venture. इसमें आजकल ना ये छोटे छोटे entrepreneurs बहुत करने लग गए हैं कि they come together and form a big firm and then they compete against a big giant fishes. Okay, so moving on to the next, we have characteristics of the business environment. Now friendly environment अगर मैं बात करती हूँ तो friendly environment से आप क्या समझते हैं? Now when we are talking about friendly environment का मतलब होता है which is welcoming to the freshers, which is accepting the unique things, which is helping each other with a minimum number of regulations, helping each other to grow together. Okay, complying with the rules and regulations imposed by the authorities, assure protection and convenience of publics, regulation of all the standards that exist to establish and maintain community values. They are clearly articulated and analyzed for the competitive impact. So I hope I am clear to everybody. Moving on to the last slide of this chapter, that is government policy changes. Government की जो policies हैं वो every now and then change होती है. हर फाइनेंशियल ईयर के साथ बजट आता है, हर बजट के साथ चेंजेस आते हैं, है ना? और उन चेंजेस के साथ आता है आपका कंपटीशन, आपकी चेंज इन डिमांड, चेंज इन बिजनेस पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं. नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने से आपके there is a need to recruit people who are acquainted with the technology, and there is a need for providing training to our own people. There is greater market orientation and lesser reliance on the budgetary support by public sector enterprises. I hope I am clear with this chapter. Yes, class, am I clear with this chapter? If you have any query, please let me know. Else I'm sharing this slide on the WhatsApp group. कोई क्वेश्चन है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज पूछिए. And those who are not the member of the group yet, please send a message to my number and I'll send you an invite and I'll share this PPT. My number I have already, I think
Have I messaged? Okay, please note down my number 9871 724 799. Okay, I will add you in the group, and then you can refer to the PPTs that I'm sending you. I hope you all have watched the books that I have referred you. Um, we have our next class on Tuesday. Till then, please make sure that you go through all the 6 chapters that we have studied. Okay, so I am ending my class. See you on Tuesday. Thank you.